Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 10 and today in this lecture we will discuss some numericals problem based on equilibrium condition, okay, of two charges. So question is 2-point charge number 1 plus 4e and plus e are fixed at a distance a. Part where should a third point charge q be placed on the line joining two charges so that it be in equilibrium, in which condition the equilibrium will be stable or unstable. What is the meaning stable and unstable? Okay, so इस न्यूमेरिकल से मैं ये पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगा कि स्टेबल और अनस्टेबल इसका मीनिंग क्या है और कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग ले सकते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको प्राप्त मिलेगी, ठीक है ना। इस चीज को इस न्यूमेरिकल से हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, सॉल्यूशन सो वी कंसीडर लेट q charge is placed between स्टेबल कंडीशन हमको लेनी है और हमसे पूछा जा रहा था कि थर्ड चार्ज q को कहाँ प्लेस करना है, इन दोनों के बीच में प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है ना। तो उसको हमने कहाँ पे प्लेस करना है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज q be placed. Okay, so हमने कंसीडर कर लिया let q charge is placed between the 4e and e. Okay, between the 4e and e, इन दोनों के बीच में, and the distance of q and the distance of q from 4e is x. Okay, x and x. Okay, now according to the question we draw the diagram. So we rough here the question. नाउ सबसे पहले कंसीडर किए हमने दो चार्जेस, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, राइट। दिस इज द लाइन joining of two charge, here plus 4e, here plus e. Okay, this is the line. So we consider a q charge is placed between 4e and e and the distance of q from 4e is x. So पहले तो ये कि 4e और e के बीच का डिस्टेंस कितना है, न्यूमेरिकल में गिवन है डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का a. अब हमने कंसीडर किया है कि इस q चार्ज को हमने जो रखा है वो फ्रॉम 4e, इस 4e से x डिस्टेंस पे रखा है। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट c और यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया q और इस चार्ज की डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर करी है फ्रॉम द चार्ज फ्रॉम द 4e, ये कंसीडर हमने करी है बेटा x, राइट। दिस, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज q फ्रॉम e? So answer is total distance is a, this is x, so this is a minus x. Okay, now the charge of q is positive charge. Nature wise the charge का जो nature of the charge q is positive, or here we also 4e positive charge and here is also e is positive, both sign is positive. So all three charges are nature wise same, positive. So this charge 4e are repelled to q. Okay, and the direction of repulsion force, this is the direction of repulsion force. Now this force is called F1.
Okay, student, F1. Now, second is the repulsion force due to plus E. Okay, on the charge Q. So this is equal to F2. F2. ठीक है? So the force on the charge Q due to 4E plus 4E is F1, and this F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, epsilon naught between A इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में लग रहा है. So Q1 is 4E. The value of Q1 is 4E, and the value of Q2 is Q into Q upon square of the distance between them. So distance between them, this x, ये x 4E और E के बीच का डिस्टेंस है. So this is x means x square. This is equation number 1. Okay. Now again the force on the charge Q due to plus E, this is equal to F2, and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught between Q and E. So Q1 is E and Q2 is Q upon square of the distance. So here distance between them A minus x. So square of the distance between them means A minus x square. Okay, student. Along the F2, ये plus E इस चार्ज पे repel force कर रहा है this. So along the BA, right? Along the BA. और here equation number 1 में along the equation number 1 ये इस पे repel लगा रहा है F1 this. So along the AB. Okay, student. And F2 both are opposite. Along the BA, this is equation number 2, and this is equation number 1 along AB, right? So in equilibrium condition, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? मतलब कि ये इस पॉइंट पे, यानी ये जो चार्ज Q है, इस पॉइंट पे ये चार्ज इस पोजीशन में कंडीशन मतलब जो है जो रखा हुआ है वो बैलेंसिंग कंडीशन में रखा हुआ है, राइट? इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंसिंग कंडीशन. मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू दिस चार्ज मींस 4E, दिस F1, and due to this charge plus E, this F2. So these two forces are equal and opposite. जब यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस इस चार्ज Q पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे तब हम बोलेंगे कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में है. मतलब ना तो ये चार्ज इधर मूव करेगा ना ही ये चार्ज इधर मूव करेगा. इस पे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, राइट? दिस इक्वल एंड अपोजिट. तो कोई भी पार्टिकल जिसपे चार्ज फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है. ठीक है ना? मतलब कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा अपने आप. ओके, दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस F1 are equal to F2. F1 are equal to F2. ठीक है? इस चार्ज इस पे F1 और F2 कैसे सेम है, राइट? सो पुट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2.
we get 1 upon 4 pi epsilon naught 4e into q upon x square. Okay, and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, equation number second, e into q upon a minus x का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, e से e कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया। ओके, जो रह गया उसको आप नोट करिए। सो पहले इतना नोट कर सकते हैं आप। नाउ हियर यहां से बचा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से बचा बेटा 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू 4 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a minus x का whole square. So square root of 4, this is equal to 2, and square root of a minus x का whole square, this is equal to a minus x. This. Okay, student. So x is equal to 2, अंदर मल्टीप्लाई कराइए 2a minus 2x, right? 2x को ट्रांसफर कराएंगे, x plus 2x, this is equal to 2a, so 3x is equal to 2a, means x is equal to 2a by 3, 2a by 3, this is the distance, means कि ये जो आपने थर्ड चार्ज पार्टिकल q रखा था इक्विलिब्रियम के लिए, इसको कितना डिस्टेंस पे रखना होगा फ्रॉम द चार्ज 4e, so answer is 2a by 3। ये टोटल डिस्टेंस a था, इस a डिस्टेंस का 2a by 3, ये x is equal to 2a by 3। जब आप इतना डिस्टेंस पे फ्रॉम द 4e से अगर इतने डिस्टेंस पे आप तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब F1 और F2 ये फोर्सेस जो है वो बराबर होंगे, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर आप निकालना चाहते हैं इस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा तो वेरी सिंपल, ये जो वैल्यू है x की जो आपने निकाली है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करा सकते हैं। ओके, ये ओके, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, राइट। x की वैल्यू को यहाँ पुट करा दीजिए, तो फ्रॉम प्लस ई चार्ज से इस चार्ज q का डिस्टेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट। नाउ सेकंड इज कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब है कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, यानी अभी इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबल और अनस्टेबल। सो सपोज यहां पे ये जो चार्ज q है ये इस समय एट अ टाइम स्टेबल कंडीशन में है। अगर मैं इस चार्ज q को डिस्प्लेस कराता हूं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं इसको डिस्प्लेस करा रहा हूं इधर राइट में, राइट, इधर राइट मींस किधर, टुवर्ड्स द प्लस e, इसको मैं प्लस e की तरफ डिस्प्लेस करा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, सो जब मैं इसको प्लस e की तरफ डिस्प्लेस कराऊंगा तो देखिए, ओके स्टूडेंट, ठीक है, अब देखिए अगर आप इस वाले चार्ज q को डिस्प्लेस कराते हैं, स्लाइडली इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस कराया, ठीक है। सपोज इसको हमने डिस्प्लेस कराया टूवर्ड्स cb, यानी टूवर्ड्स राइट, इसका राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, तो टूवर्ड्स राइट अगर हमने इसको डिस्प्लेस कराया तो क्या होगा बेटा, नंबर 1, अगर ये चार्ज को आप डिस्प्लेस करा के इस पॉइंट पे लिया है, इधर पॉइंट C पे अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, बराबर है, तो ये चार्ज ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अपने आप
लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस चार्ज क्यू को डिस्प्लेस कराया इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, और सपोज मान लिया हमने टूवर्ड्स किधर करा दिया हमने राइट साइड में, तो जैसे ही आप इस चार्ज को मान लीजिए इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दिस चार्ज क्यू, डिस्टेंस बिटवीन 4e एंड q, दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजेस, ओके, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा भाई। अगर आप इसको यहां लेके जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये क्लियर हो रहा है। और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये इन दोनों की के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लग रहा था, तो आंसर इज ये F1, ये तो फोर्स लग रहा था बिटवीन 4e एंड q। तो जब ये चार्ज यहाँ जाएगा, सपोज ये चार्ज यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और फोर्स इनके बीच में डिक्रीज हो गया। तो हमने लिख दिया हियर वी अज्यूम अ चार्ज q बी पॉजिटिव। नंबर 1 तो हमने ये माना है कि ये वाला चार्ज हमारा पॉजिटिव है, राइट। तो नंबर 1 तो ये कि q क्या है आपका, पॉजिटिव है, राइट। दूसरा, इफ वी डिस्प्लेस द चार्ज q स्लाइडली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन सपोज टुवर्ड्स राइट, राइट मींस दिस, सो क्या होगा, एक्शन इज F1 इज डिक्रीजेस, ओके, F1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जो लग रहा है टुवर्ड्स CB, ठीक है। सो दिस फोर्स इज डिक्रीजिंग, बट दिस फोर्स F2 is increasing. Why F2 is increasing? Because F2 जो फोर्स है वो लग रहा है बिटवीन प्लस E एंड प्लस Q, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है अभी चार्ज इस पोजीशन पे आ गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो गया बेटा, ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, आंसर इज ये डिस्टेंस डिक्रीज हो गया भाई। ये पॉइंट बी और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो फोर्स था F2, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इंक्रीजेस। सो नेट फोर्स कितना होगा, पहले नेट फोर्स कितना था आंसर, पहले तो नेट फोर्स 0 था, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो नेट फोर्स 0 होता है, F1 और F2 इक्वल थे। तो अब नेट फोर्स कितना होगा, आंसर नाउ net force on the particle, net force F, this is equal to, तो इंक्रीज कौन हुआ है, F2 इंक्रीज हुआ है, मींस F2 बड़ा है, ठीक है ना, F1 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, F2 माइनस S1 कर दीजिए, या वही रूल जो है आपका, मान लीजिए यहाँ नेट फोर्स आपको निकालना है तो वेक्टर लॉ अप्लाई करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में है, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, अगर नेट फोर्स रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं आप तो दिस इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस, कितने डिग्री का एंगल है, 180 और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया बेस, और ये जो है ये है F1 या F2 बड़ा है हमारा, तो F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं बेटा, इन स्क्वायर रूट, ओके। अगर यहाँ F2 और ये F1, राइट, तो F2 माइनस F1 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आएगा, F2 माइनस F1, ठीक है। ये नेट फोर्स होगा बेटा, और ये किधर की तरफ एक्ट होगा, तो आंसर है जब भी 180 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो हमेशा वहां एक्ट होता है जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो मैग्नीट्यूड किस फोर्स का ज्यादा है, इंक्रीज कौन हुआ, F2, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, आंसर इज F2 is greater than F1, so direction of the resultant is towards left। ये डायरेक्शन इस रिजल्टेंट की होगी, सो टुवर्ड्स अलोंग, नेट फोर्स अलोंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में इसकी डायरेक्शन होगी।
तो लेफ्ट में होगी, तो क्या होगा, ये जो चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया था स्लाइडली, और डिस्प्लेस करा के हम इस पॉइंट पे लेके गए थे, इस वाले पॉइंट पे हम लेके चले गए थे स्लाइड करा के, ठीक है। तो जैसे हम इसको इस पॉइंट पे लेके गए तो ये फोर्स इंक्रीज हुआ और ये वाला फोर्स डिक्रीज हुआ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो ये इस चार्ज को वापस यहां ले आएगा अपनी मेन पोजीशन पे, ठीक है ना, यानी पॉइंट सी पे। और जैसे ही इसको पॉइंट सी पे लेके आ जाएगा, तो ये जो हुआ, ये जो एक्शन हुआ, इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। स्टेबल मींस कि अगर हम चार्ज को डिस्प्लेस भी करा रहे हैं तो वो वापस कहां लौट के आ जाता है, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस लौट के आ जाता है। तो अगर चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस लौट के आ जाता है हमारे डिस्प्लेस कराने के बाद भी, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम नेचर में बोला जाता है, वो बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सो आई होप यू आपका क्लियर हुआ होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि अनस्टेबल फिर क्या होगा। अनस्टेबल मींस कि अगर डिस्प्लेस करा देंगे उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो क्या होगा, लौट के वापस अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो आई होप स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर हुआ होगा। ओके, सो यहां लिख देते हैं, due to which charge will return to its equilibrium position, okay. Hence this equilibrium is stable equilibrium, ओके स्टूडेंट। सो दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा स्टेबल क्या है और अनस्टेबल क्या है। तो सेकंड केस में हमको अनस्टेबल के लिए दोबारा से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, नाउ देखिए बेटा, अनस्टेबल में जब भी हमको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए होगा, तो केवल और केवल आपको यहां जो चेंज करना है वो चेंज इस चार्ज के साइन का करना है। पहले स्टेबल के लिए आपने अज्यूम किया था कि चार्ज Q टू बी पॉजिटिव है, ओके। अब की बार आप अज्यूम करेंगे चार्ज Q टू बी नेगेटिव। लेट द चार्ज, या वी अज्यूम the charge, the third charge, the charge Q to be नेगेटिव, ओके। बस इतना चेंज आप करेंगे तो ये चार्ज नेगेटिव होगा, ओके। जैसे ये चार्ज नेगेटिव होगा तो कुछ चेंज आएगा, जैसे the electrostatic force between 4e and minus q. This force is repel या attraction। नेचर वाइज ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। सो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो F1 इस बार F1 की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द CA, क्योंकि ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स यानी F1 ये अलोंग CA, ये चेंज हो गया। दूसरा चेंज क्या होगा, ये द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस E एंड माइनस Q। तो ये वाला चार्ज प्लस E इस चार्ज Q को अट्रैक्ट करेगा, ओके स्टूडेंट। सो अब की बार इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F2, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दिस डायरेक्शन इज F2।
अभी भी देखिए कंडीशन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई है। अपोजिट में इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको मिल जाएगी, ओके ना। तो लेकिन F1 और F2 की डायरेक्शन चेंज हो गई इस बार। पहले F1 और F2 की डायरेक्शन अलग थी और इस बार F1 और F2 की डायरेक्शन अलग है। F1 इज अलोंग CA एंड F2 इज अलोंग CB, राइट दिस। सो फिर से आप दोनों का इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए F1 और F2 को इक्वल रखेंगे और फिर से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अनस्टेबल में केवल क्या चेंज हुआ? अच्छा, अनस्टेबल क्यों है ये? तो देखिए फिर से आप अगर चाहें तो इस क्यू चार्ज को स्लाइडली डिस्प्लेस करा सकते हैं। चलिए मैंने इस बार फिर से इस चार्ज क्यू को स्लाइडली डिस्प्लेस करा लिया टुवर्ड्स CB या टुवर्ड्स राइट, है ना। तो जैसे ही मैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कराऊंगा, मान लो ये चार्ज मेरा यहां आ गया इस पोजीशन पे, राइट, इस पोजीशन पे आ गया। तो देखिए ये पॉइंट A और इस चार्ज कि ये चार्ज पॉइंट C से इस पोजीशन पे आ चुका है। ये क्लियर हो रहा है ना, इस पोजीशन पे आ चुका है। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डिक्रीज होगा। और वो फोर्स का नाम हमने क्या दिया? F1। तो F1 क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? बोलिए F1 क्या हुआ? F1 इज इंक्रीज। देखिए F1 क्या हुआ? डिस्टेंस क्या हो गया A और इस चार्ज Q के बीच का, क्योंकि हमने इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करा दिया टुवर्ड्स राइट, तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, ओके। सो इन दोनों की जो फोर्स लग रहा था F1 इज डिक्रीजिंग दिस साइन, दिस एरो इज F1 इज डिक्रीजिंग, ओके। एंड F2 यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं। Here we assume the charge Q to be negative। इस बार हमने इसको क्या माना? नेगेटिव, राइट, नेगेटिव। We displace the charge minus Q slightly from its equilibrium condition, suppose towards right CB, okay. Then F1 is increasing. F1 is increasing and F2 is decreasing. F2 is decreasing. So net force, yes, F net, okay. शायद कुछ गलत बोल गया मैं, हाँ यहाँ पे सॉरी, दिस F1 is decreasing, ठीक है ना। F1 डिक्रीज ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस इस चार्ज यानी 4e और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, और F1 फोर्स जो लगता है वो इस चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बिटवीन 4e एंड माइनस क्यू। सो दिस फोर्स इज F1। सो F1 इज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो F1 इज डिक्रीजिंग, राइट, डिक्रीजिंग, एंड F2 इज इंक्रीजिंग। Why F2 is increasing? क्योंकि F2 between plus E and plus Q, ठीक है ना, between plus E and plus Q, so this distance is decreasing, so the force between them is increasing, right? So F2 is increasing. Now net force is, अभी भी कौन increase है? F2, और decrease कौन है? F1. So net force कैसे होगा? वही जैसे पहले कैलकुलेट किया था, F2 minus F1, F2 minus F1। अच्छा, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? मैंने पहले ही बोला था जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? F2 तो इंक्रीज हुआ है, और F2 की डायरेक्शन कौन सी है बेटा? ये F2, ये तो लग रहा था, देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये था F2, ओके। ये तो ये क्या है? अलोंग द राइट, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट या अलोंग द CB, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो टुवर्ड्स राइट, direction is towards right, okay। so towards right means कि इस डायरेक्शन में ये जो चार्ज है, जैसे हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऑलरेडी इस प्लस ई की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा, अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में लौट के नहीं आएगा। तो इस पॉइंट C पे ही ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप इसको डिस्प्लेस कराएंगे तो यहाँ लौट के नहीं आएगा। इट मींस कि दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था? आपने डिस्प्लेस कराया था, लेकिन वापस लौट के क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया था, तो वापस लौट के वो पॉइंट C पे बैक हो रहा था, रिटर्न हो रहा था। लेकिन यहाँ पे
रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि F2 इंक्रीज है और F2 जो अप्लाई हो रहा है वो किधर हो रहा है, टूवर्ड्स राइट। तो इसको आप इधर अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं राइट की तरफ, तो ये फोर्स F2 इंक्रीज होगा और ये इस माइनस Q चार्ज को राइट की तरफ प्लस E की तरफ लेके जाएगा, ये रिटर्न नहीं होगा पॉइंट सी पे। सो दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। सो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ टुडे वी विल क्लोज हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू।